میرے گرد بنی رسموں کی زنجیریں مجھے سولی چڑھاتی ہیں، خوابوں کی تعبیریں ان سب کو تو توڑ کے رکھ دے، مجھے بس میرے جینے کا حق دے۔ جب اجد سرخ خوبصورت گلابوں سے سجا کمرہ انتہائی خوفناک ماحول بنا رہا تھا، رخسار سے کمرے کے وسط پہ پیچھے بیڈ پہ بٹھا چکی تھی۔ سب کزن لڑکیوں کو کمرے سے نکال کر وہ سویرے کے پاس آئیں۔ سویرا میری بہن، مجھے پتا تم اس وقت کن خدشات سے گزر رہی ہو، بس میری ایک بات یاد رکھنا، تمہارا اور شہریار کا یہ رشتہ اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ مانا وہ تھوڑا خفا ہے لیکن ہے تو ایک مرد ہی، تم سے اپنی وفا اپنی تابع دلی سے جی سکتی ہو۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ انہوں نے خاموش بیٹھی اپنی حنائی ہتھیلیوں کو تکتی سویرا کو مخاطب کیا۔ جی آپی، وہ مشکل بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ بس تم جو شہریار کے کہہ مانتی جانا دیکھنا شروع کر، یہ مشکل وقت گزر جائے گا، پیش آؤ، تمہاری ہر بات مانے گا، بس تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے پیار سے اس کے ہاتھ تھپتھپائے۔ اب میں چلوں، جا کر تمہارے اکرم بھائی کو دیکھوں، آج شام سے دوستوں کے ساتھ فائرنگ پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپی پلیز سے مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سویرا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائی۔ سویرا میری بہن، لڑنے کی ضرورت نہیں، ہمت کرو، میں جا کر شاہو کو بھیجتی ہوں۔ اسے تسلی دیتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ رخسار کے جاتے ہی سویرا نے گہرا سانس لیا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی جو اس کے رگوں میں اتر رہی تھی۔ وہ اپنی نازک مہندی سے سجا دودھیا ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اس کی مہندی کا رنگ بہت گہرا آیا تھا۔ سبھی کزن نے اسے خوب چھیڑا تھا اور اس وقت وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا مہندی کے رنگ کی گہرائی زندگی میں عزت سے سر اٹھا کر جینے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسے محبت پیار کبھی کچھ نہیں چاہیے تھا، بس دو بول اس کی عزت کے لیے، اس کے وقار کے لیے چاہیے تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جب دروازے کے نوب گھمانے کی آواز پر اس کے کانوں میں پہنچی۔ وہ چوکنا ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گئی، اپنی بھیگی ہتھیلیوں کو مسلتے ہوئے۔ گھنی پھلکیں جھکائے ساکت کھڑی تھی، دل تھا کہ خوف سے لرزا رہا تھا۔ گاؤں کے وسط میں وسیع سبزار میں گہری قیمتی پتھروں سے سجی حویلی آج اپنے وارث شہریار کی شادی کی تقریب میں پوری شان و شوکت آن بان سے دمک رہی تھی۔ باہر پٹاخہ پھوڑے جا رہے تھے، آسمان میں رنگ برنگے انار پھوٹ رہے تھے۔ اکرم، زاہد، اقبال، وسیم سب اب دوست کزن فائرنگ کر کے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے تو اندر بزرگوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ فرزانہ آپی، آپ اتنی چپ چپ کیوں ہیں؟ آپ نے کسی بھی رسم میں حصہ نہیں لیا کیا؟ شاہو آپ کا بیٹا نہیں جو آپ نے اتنی بے رخی برتی؟ سلیم صاحب اپنی بہن کے پاس بیٹھتے ہوئے گویا ہوا رہنے دے صاحب جی، یہ سب منہ دیکھی کی محبت ہے۔ وہ اپنے شانوں سے ان کے کندھے ہٹاتے ہوئے تلخی سے بولی۔ فرزانہ آپی، اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدہ ہوئے۔ سلیم، میں نے ایک بار نہیں ہزار بار کہا تھا کہ شہریار کی شادی کسی سے بھی کر دو، مگر خدا را اس لڑکی سے مت کرو، مگر میری سنتا ہی کون ہے اس گھر میں؟ آپا، سویرا ہمارا خون ہے، عزت ہے اس حویلی کی، رہنے دو سلیم میاں، اس لڑکی کی رگوں میں اس کی ماں کا خون دوڑتا ہے جس نے میرے چھوٹے بھائی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، خود تو مر گئی اور یہ بلا ہمارے سر چھوڑ گئی۔ پیاری آپا، یہ شاہ بی بی کا فیصلہ تھا جو ان بچوں کے بچپن میں ہی لے لیا گیا تھا، اور آپ یہ مت بھولیں اس کی رگوں میں ہمارے بھائی کا خون بھی ہے۔ وہ خود سویرا کو شہریار کے نکاح میں دے کر گیا تھا۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو شاہ بی بی سے اپنی بات منوا سکتے تھے، کیونکہ شاہو بھی اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے شاہ بی بی سے کسی بھی رضامندی نہیں، بس فیصلہ سنا دیا۔ فرزانہ آپا، آپ کو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ظالمانہ فیصلہ ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں، اس طرح ہماری زمینیں اور دونوں فیکٹریاں، یہ حویلی، ساری جائیداد گھر میں ہی رہے گی۔ انہوں نے سمجھایا۔ لیکن وہ لڑکی منو سے پیدا ہوتی اپنی ماں کو کھا گئی، پھر یاد کرو اس کی پہلی سالگرہ پہ فیکٹری میں آگ لگی تھی، پھر میرا بھائی چلا گیا، مجھے تو ڈر ہے سب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپا، وہ سب قدرت کے فیصلے تھے، آپ دیکھیے گا اب کچھ نہیں ہوگا۔ سلیم میاں، لکھ لو، شادی نہیں، بربادی ہے، بربادی۔ آپ سب ایک غلط فیصلے نے ایک اسمنی لڑکی کو ہمارے سر پر بٹھا دیا جسے میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ابھی وہ بولی رہی تھی کہ باہر سے شور و غل کی آواز سنائی دی۔ میاں، جا کر ان لڑکوں کو منع کرو، خوشیاں تو ایسے منانے جیسے کوئی ملکہ بیاہ کر آئی ہو۔ وہ ملا کر بولی۔ سلیم ماموں، ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا، اکرم بھائی کو گولی لگی ہے، قادر بھائی نے سب ہسپتال لے گئے ہیں، ہائے اللہ میرا بچہ، میرا بیٹا۔ فرزانہ نے تو کلیجہ ہاتھ پہ پڑا۔ رخسار بیٹی، سلیم صاحب نے اونچی آواز لگائی۔ جی بابا صاحب۔ رخسار اندر داخل ہوئی۔ جلدی بیٹا، جلدی سے میرا فون لاؤ، سب ٹھیک تو ہے بابا صاحب؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رخسار نے پریشانی سے ایک نظر ہوتی ہوئی اوپر پہ ڈالی۔ منو، اب سب ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس لڑکی کی منوسیت میرا بیٹا کھا گئی، میرا اکرم۔ فرزانہ رو پڑی۔ کیا کہہ رہی ہیں پھوپھو؟ رخسار نے سہمی ہوئی نظر سے باپ کو دیکھا۔ کچھ نہیں بیٹا، تم اندر سے میرا والیٹ اور سائل لے کر آؤ، اکرم کو گولی لگی ہے، لڑکی سے ہسپتال لے کے گئے ہیں، مجھے بھی نکلنا ہے۔ وہ رخسار سے بولے۔ بابا صاحب، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ رخسار نے بمشکل آنسو پیتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک ہوگا، تم بس کرو، اپنی ماں اور شاہ بی بی کا خیال رکھنا، میں اسپتال پہنچ کر صورتحال بتاتا ہوں۔ شہریار کافی دیر سے حویلی کے پچھلے حصے میں کو اسموکنگ کر رہا تھا، رخصتی ہو چکی تھی، شاہ بی بی سے ڈھیروں دعائیں اور کمرے میں جانے کی ہدایت دے چکی تھی۔ وہ سب سے نظر بچا کر اس گنجان حصے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کا دل
मुफस्सल कमरे में जाने से इनकार था। घुटनों से घटने से ऊपर हो गया था। जब इसे बाहर गैर मामूली शोर का एहसास हुआ, वो दौड़ते हुए बाहर पहुंचे तो अकरम भाई खून में लथपथ पड़े थे। हवाई फायरिंग करते हुए गोली पलट कर इनके बाएं शाने में धंस गई थी। वो जल्दी से अपने कजन कादिर भाई के साथ इन्हें लेकर पिजारों में बैठा। शहरयार, तुम अंदर दुल्हन के पास जाओ। कादिर भाई ने इसे टोका। दुल्हन कहीं भागी नहीं जा रही, आप जल्दी करें, इनका बहुत खून बह रहा है, वो तन लहजे में बोला। वो सब अस्पताल पहुंच चुके थे। अकरम भाई को फौरी तौर पर इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। वैसे तो ये एक पुलिस केस था, मगर पैसे की ताकत सब काम करवा लेती है। वो सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे जब सलीम साहब दर पहुंचे और वो शहरयार को अस्पताल में देखकर हैरान रह गए। अकरम कैसा है, डॉक्टर क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी हैरत और गुस्से पर जो शहरयार को देखकर उमटाया था काबू पाते हुए पूछा। बाबा से अभी ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर बाहर आता तो ये कुछ पता चलेगा। शहरयार ने जवाब दिया। वो सर हिलाते हुए वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गए। 1 घंटे के तवील इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए। इसे देखकर सलीम साहब भी खड़े हो गए। अब क्या हाल है हमारे बेटे का? गोली दिल को छूती हुई ऊपर सीने में लगी थी, इसे बाहर निकाल दिया है। मरीज का खून बहुत ज़ाया हुआ है, आज की रात अहम है, आप दुआ करें इन्हें सुबह तक होश आ जाए, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया। सलीम साहब के चेहरे पर बरसों की थकन उतर आई थी। बस बात में सर हिलाते शहरियार की जाने मुड़े। शहरियार बेटा, रात बहुत हो गई, अब तुम हवेली जाओ, सवेरा बेटी इंतजार कर रही होंगी। नहीं बाबा साईं, जब तक अकरम भाई को होश नहीं आता मैं इधर ही हूँ, आप घर जाएं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं आपको इनकी तबीयत फ़ोन पर बताता रहूँगा। कादिर भाई आप बाबा साहब को लेकर हवेली जाए, मैं हूँ इधर। लेकिन शहरियार सोबर से कादिर भाई ने इसे समझाना चाहता, लेकिन यकीन कुछ नहीं भाई, है अंदर अकरम भाई सिर्फ मेरे भाड़े भाई नहीं है, बहनोई भी हैं, मैं इन्हें इस तकलीफ में छोड़कर नहीं जा सकता, वो दो दो लहजे में बोला। और सर झुकाए बैठी थी जब कदमों की आवाज़ इसके बिल्कुल करीब आकर तक गई थी। फिर किसी ने निहायत ही बेदर्दी से इसके चेहरे को अपनी गिरफ्त में जकड़ कर ऊपर किया। फूफो इसके मुंह से निकला, मनोज तू इधर बैठी किन सपनों में घूमे? उन्होंने इसके धान बांध से वजह को घसीटे हुए बेड से नीचे उतार कर जमीन पर पटका। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज मेरा अकरम अस्पताल में है। गलती मेरी है जो मैंने तुझे पैदा होते ही नहीं मार दिया। ना तुम अपनी मासूम मनुष्यत लेकर इस खानदान में आती, ना ही आज मेरा बेटा अस्पताल में होता। वो उसे जोर जोर से पीट रही थी। सवेरा की बेयकीन नजरें फरजाना पुप्पो की आंखें से टकराई जिनसे शरारे फूट रहे थे। पुप्पो आप सवेरा की सिसकी उभरी। उन्होंने इसके सर के बालों से झगड़ा जिस पर पहले ही भारी उर्सी दुपट्टा पर से टका हुआ था। तकलीफ की शिद्दत से सवेरा की आंसू निकल आए। ये रोने धोने और मजलूमियत दिखाने का ड्रामा बंद करो, इस तरह तुम अपने दाया को मुतासिर कर सकती हो। मुझ इन डसलों का असर नहीं होता, ना ही मैं तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू से मुतासिर हो सकती हूँ। उन्होंने इसे एक जोरदार झटका दिया। वो जाकर मेज से टकराई। कांच की कई चूड़ियाँ टूटकर कलाई को लौलान कर चुकी थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को गोली लगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मनुसियत की वजह से। मेरा अकरम अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप मरा और तुम ये सेज सजाकर समझती हो कि मैं तुम्हारी जैसी मनुष्य को इस हवेली में टिकने दूंगी? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारी मनुसियत का साया भी इस हवेली के बच्चों पे पड़ने नहीं दूंगी। वो हकारत से कहती हुए उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकालने लगी। अगर तुम में जरा बराबर भी अपने बाप का खून से है गैरत है तो इधर से दफान हो जाओ। वो उसे राधनी में धक्का देते हुए बोली। फरजाना दुल्हन बनी सवेरा को राधनी में रोता से सकता छोड़कर कमरा लॉक करके जा चुकी थी। सवेरा बेटी पता नहीं कितनी देर बाद इसके कानों से तायब की आवाज़ टकराई। ये क्या हुआ है? वो परेशानी से इसके जख्मी वजूद को देख रहे थे। माथे पे नील काल पर आंखों के निशाना, उंगलियों के निशानात बस सब थे। होठों के पास से खून की लकीर बह रही थी। शाह बीबी, जायदा बेगम, रुखसार, वो बुलंद आवाज़ से चिल्लाए। थोड़ी देर में सब लोग जमा हो गए। किसने इस बच्ची का ये हाल किया? वो खर्राए। शाह बीबी तो सवेरा को इस हाल में देखकर दहल गई। रुखसार, तुम फौरन सवेरा को मेरे कमरे में लेकर आओ। जायदा, अब आप फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए, शाह बीबी ने हिदायत दी। सवेरा का जोर जोर दुख रहा था। शाह बीबी से अपने सीने से लगाए हुए बैठी थी जब रुखसार गर्म पानी और तौलिया लेकर अंदर दाखिल होती। शाह बीबी ने अपने बूढ़े कपाते हाथों से गर्म पानी में तौलिया भिगोकर इसके चेहरे पर जमे खून को साफ किया। रुखसार खामोशी से कलाई में चुभी कांच की उंगलियों को टुकड़े निकाल रही थी जब जायदा हाथ में हल्दी मिला नीम गर्म दूध और दर्द की गोली लेकर अंदर दाखिल हुई। सवेरा बेटी, हिम्मत करो, ये दूध के साथ गोली लो। उन्होंने प्यार से उसे उठाकर दूध का गिलास के लबों से लगाया। रुखसार बेटी, बहन को इसके कमरे में ले जाओ और लिबास तब्दील करो, आराम से सुला दो, शाह बीबी ने सोचते हुए कहा। पर शाह बीबी इस हालत में इसे अकेला कैसे छोड़ दे? जायदा ने फौरी कहा। इसके सर का साईं संभाल लेगा, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो दो टोक लहजे में बोली। रुखसार सवेरा को सहारा देती हुई शहरयार के कमरे तक लाई। वक्त भी कितनी अजीब है ना, अभी चंद घंटों पहले सजी संवरी शर्माई घबराई सी सवेरा को सेज पर बिठा कर गई थी और अब सवेरा, चंदा उठो, हिम्मत करो, जूलरी भारी लिबास तब्दील करो। उन्होंने इसे कुर्सी पर बिठाया और अब इसके दुपट्टे से पीने निकाल कर जेवर उतारने में मदद कर रही थी।
किस कदर अरमानों से उन्होंने ब्यूटिशियन के साथ मिलकर इसे दुल्हन बनाया था। वो अपने आंसू पीते हुए इसकी मदद कर रही थी। एक तो सवेरा की हालत, दूसरे इनके शौहर अस्पताल में थे। रुखसार की अपने दिल की हालत बहुत ख़राब थी। चलो शाबाशी, ज़ेवर तो उतर गया, अब तुम ये लिबास तब्दील कर लो। सवेरा बड़ी बेदिली से उठी और रुखसार के हाथों से गुलाबी शलवार कमीज लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। भारी कम कम भारी कम उरूसी जोड़े से निजात हासिल करके वो बाहर निकली। वैसे भी वो कोई मनचाही रिवायती दुल्हन तो थी नहीं कि अपने शौहर के इंतजार में सजी सवरी बैठी रहती। इस वक्त ये कमरा ये फूलों से सेजी से कांटों का बिस्तर महसूस हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बिस्तर तक लाई और कमरे पर बैठ गई। सवेरा तुम लेट जाओ, शेरियार अस्पताल में शायद सुबह ही आएगा। रुखसार आप ही बस की क्या आप भी मुझे मनूस समझ रही है? मेरी वजह से अकरम भाई। वो रो पड़ी। नहीं सवेरा गुड़िया, तुम मनूस नहीं हो, हर किस नहीं हो, और देखना तुम्हारे अकरम भाई भी ठीक होंगे। रुखसार आप ही, अगर अकरम भाई को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूंगी। शिशु कुछ नहीं होगा, चलो तुम ये टैबलेट हो। उन्होंने नींद की गोली इसकी जानिब बढ़ाई और इसे कंबल उड़ाकर एसी की कूलिंग तेज करके लाइट बल्ब जलाकर बाहर निकल गई। सवेरा को शहरियार की खौफ अजनबी सी महसूस हो रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि शहरियार ने ये रिश्ता सिर्फ ताया और शाबीबी के दबाव में आकर जुड़ा है, और ये जो सब कह रहे थे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक छोटी तसल्ली के सिवा और कुछ नहीं था। वो सोचों में घुई नींद की वादियों में उतरती चली गई। सुबह के 4 बजने वाले थे। वो अस्पताल के कोने में खड़ा सिगरेट पी रहा था जब इसे आईसीयू में हलचल सी दिखाई दी। वो सिगरेट को फेंक कर पैर से मसलता हुआ तेजी से आईसीयू की जानिब बढ़ा। अकरम भाई को होश आ गया था। इन्हें डॉक्टर देख रहा था। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मरीज की तबीयत कैसी है? इसने सवाल किया। होश आ गया, खतरे से बाहर है, इन्हें जल्द ही रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में जवाब देते हुए आगे बढ़ गया। शहरयार ने अंदर दाखिल होकर अकरम भाई को देखा, जो अभी भी नींद बेहोशी में लग रहे थे। वो ताज्जुब से इन्हें देखता हुआ नर्स से इनकी पूरी तफसीलात बदला पता करने लगा। कुछ देर अंदर ठहर कर वो बाहर निकला तो वेटिंग रूम में लेटे कादिर भाई जाग चुके थे। वो इन्हें अपडेट करता हुआ फ़ोन निकालकर बाबा साईं को फ़ोन मिलाने लगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, मुबारक हो, अकरम भाई को होश आ गया, वो खतरे से बाहर है। इसने लाइन मिलते ही कहा, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अब तुम फ़ौरन वापस आओ, मैं और रुखसार अस्पताल के लिए निकल रहे हैं। बाबा सही, पहले आप आ जाएँ फिर मैं घर चला जाऊँगा। शेर बस बहुत हो गया, अकरम अकेला नहीं कादिर है इधर, अब तुम जल्दी से हवेली पहुँचो, फिर मैं और सा अस्पताल जाएँगे। पर बाबा सही, बस मुझे अब मज़ीद कुछ नहीं सुनना, तुम हवेली आ रहे हो। बाबा साईं राब्ता मुंतक़िल कर चुके थे। वो एक साथ आ भरते हुए फ़ोन जेब में रखते हुए कादिर भाई को बताने के लिए वेटिंग रूम की जानिब बढ़ा। इन्हें सब बताकर अब वो पिजारों में बैठा हवेली की जानिब रवाना हो चुका था। 1 घंटे की ड्राइव के बाद आलीशान हवेली इसके सामने खड़ी थी। चौकीदार ने इसे देखते ही बड़ा आहानी दरवाज़ा खोला और वो गाड़ी अंदर ले गया। वो यहाँ आना नहीं चाहता था। इनफैक्ट वो तो इस हवेली की फ़िज़ा में जहाँ इसे बेबस करके एक ज़बरदस्ती के बंधन में बाँध दिया गया था, साँस तक लेना नहीं चाहता था। लेकिन अपने बाबा साहब की मोहब्बत के आगे, इनके मान के आगे हार गया था। इसे सोच लिया था कि वो कम से कम अपनी माँ-बाप को तो खुश कर दे। गाड़ी से उतर के 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि उर्वा का हौला इसकी नज़रों के आगे आकर खड़ा हो गया। शेरी, क्या तुम मुझे धोखा दोगे? क्या वाक़ई तुम मुझे भूल जाओगे? वो हौला इससे आँखों में नमी लिए सवाल कर रहा था। वो साकित सा हो गया। क्या वाक़ई वो उर्वा को धोखा देने जा रहा है? क्या वो एक धोखेबाज़ इंसान है? सबसे बढ़कर क्या सवेरा दब्बू सी लड़की उर्वा की जगह ले सकती है? इसके ज़हन में उठते तमाम सवालात की बुझारत ने एक तलादुम सा पैदा कर दिया। एक अजीब-सी वहशत भर दी थी। इसका दिल चाहे सब कुछ छोड़-छाड़ कर वापस चला जाए। अभी वो सोच में गुम खड़ा था, किसी ने इसके शाने पर हाथ रखा। वो चौंका। शाऊ, वो कैसे हैं अब? रुखसार नम आँखें साफ़ करती हुई पूछ रही थी। सर आप मत रोएँ, हौसला करें। अकरम भाई अब ठीक है, खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। वो रुखसार के आँसू साफ़ करते हुए बोला, शुक्र खुदा का, अच्छा अब तुम अपने कमरे में चलो, थोड़ा आराम कर लो। मैं बस शुकराना अदा करके बाबा साईं के साथ हॉस्पिटल निकलती हूँ। वो उसके साथ कदम उठाती हुई अंदर दाखिल हुई। मैं बाबा साईं से मिल लूँ, फिर आराम करूँगा। बाबा साईं की अभी कुछ देर पहले ही आँख लगी है, घंटा भर सोने दो, फिर तो फ़जर पढ़कर अस्पताल निकलना है। अच्छा शाओ, सवेरा की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने इसे नींद की दवा देकर सुला दिया था, ज़रा ख़्याल रखना। वो इसे दितला देती हुई अपने कमरे की जानिब मुड़ गई। वो बोझल कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। इसका दिमाग दोनों ही समझौता करने से इनकारी थे। वो खुद को टपकते हुए कमरे के दरवाजे की नॉब घुमाकर अंदर दाखिल हुआ। पूरे कमरे में हल्की-हल्की सी नीलीको सी रोशनी फैली हुई थी। इस पर गुलाब के फूलों की महक और एसी की खनकी ने माहौल को खौफनाक बना दिया था। वो कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा तो सामने ही बेड पे सवेरा का दिलकश वजूद मुस्कुराहट था। वो इस वक्त सादा से लिबास में मलबूस था।
तुम वाक़ई खूबसूरती और दिलकशी का मुजस्समा हो, कोई भी तुम जैसी बीवी पाकर अपने आप को खुशनसीब समझेगा, लेकिन अफ़सोस मैं वो नहीं हूँ। वो एक अचपटी-सी नज़र इस पे डालते हुए अलमारी की जानिब बढ़ा, अपने लिए आरामदेह लिबास निकाल कर तब्दील करने चला गया। काफ़ी देर नीम गर्म पानी से शावर लेकर खुद को पुरसुकून करता हुआ बाहर निकला। वो सोना चाहता था, लेकिन बेड पर मौजूद सवेरा का वजूद इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो इसके साथ बेड शेयर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो चंद लम्हे कमरे में टहलता रहा, फिर वो जाकर सोफ़े पे बैठा और इरादा सोफ़े पर सोने का था, लेकिन वो ट्विस्टर सोफ़ा था इसके लिए लंबे चौड़े वजूद के लिए नाकाफ़ी था। थक हार वो उठा और बेड पे लेटी सवेरा की जानिब बढ़ा। "ए लड़की उठो" इसने दवास लगाई। "सुनो यहाँ से उठो" इसने कंबल इसके चेहरे से हटाया। जब सवेरा टच से मिस ना हुई तो वो भननाता हुआ बेडरूम फ्रिज की तरफ बढ़ा और ठंडे पानी की बोतल निकाल कर बेड की जानिब पलटा। वो बेडरूम फ्रिज से ठंडे यख पानी की बोतल निकाल कर बेड पे मुस्तराहत सवेरा के पास आया। बोतल का ढक्कन खोलकर इसके चेहरे पानी के छींटे मारे। वो नींद में कसमसाए नीलों की रोशनी में इसका चेहरा 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 अपनी पूरी दिलकशी के साथ इसके सामने था। इस रिश्ते से हज़ारों इख्तिलाफ़ात के बावजूद वो इसकी वजूद की दिलकशी और खूबसूरती से नज़र नहीं हटा पा रहा था। सियाह सिल्क के लंबे चमकीले बाल तकिए पर फैले हुए थे। इसका बेसाख्ता दिल चाह के इन्हें छूकर देखे। वो उसकी सिम झुका भी इसने मशगूल मशकू मुश्क वो लज़ुल्फ़ों को छूने के लिए हाथ बढ़ाए था कि इसका फ़ोन बजने लगा। वो जैसे ही बेदार सा हुआ, तेज़ी से दूर हटते हुए बोतल को साइड टेबल पर रखकर फ़ोन चेक करने लगा। उर्वा कॉलिंग जगमगा रहा था। "हेलो, किधर हो शेरी? जब से गए हो लगता है अपनी फ़ैमिली में उलझ के मुझे भूल गए हो।" उर्वा की रूठी आवाज़ गूंजी। "उर्वा, मैं यहाँ तफरीह करने नहीं आया और फ़ोन तुमने खुद इग्नोर किया था।" वो रूखे लहजे में बोला। "हाँ, तो जब तुम मुझे इग्नोर करोगे तो फिर मुझे भी तो गुस्सा आएगा। वैसे भी एक तो मुझे अकेला छोड़ गए और ऊपर से पहुँच कर कॉल भी नहीं की। बोला अभी फ़ोन करने की ज़हमत कैसी कर ली तुमने? गुस्सा उतर गया क्या?" वो सोफ़े पे मुश्किल लेटते हुए बोला। "फ़ोन ना करती तो क्या करती? तुम्हारे बगैर रह भी तो नहीं सकती।" वो दिल करफ्ती से बोली। "देखो उर्वा, याद रखना मैं नख़रे उठाने वाला आदमी नहीं, मुझसे सीधी-सादी बात किया करो। अच्छा छोड़ो सब, ये बताओ अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात की?" उर्वा, "हनी, मैं यहाँ बाबा साई से मिलने की इनकी इयादत करने आया हूँ, शादी की बात करने नहीं। शेरी, आई एम मिसिंग हूँ अ लॉट।" वो उदासी से बोली। "डोंट वरी हनी, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा। बहुत ही रूठ हो तुम, ज़रा भी रोमांटिक नहीं हो। क्यों, अब क्या किया मैंने? तुम्हारा कहना चाहिए था कि आई मिस यू टू, लव यू भी कह सकते थे।" काफ़ी देर वो उर्वा से बातें करने के बाद बड़ी मुश्किल से सोफ़े पर ही आड़ा तिरछा हुआ लेट गया। रात भर वो सोफ़े से पर बेचैन रहा था, पता नहीं कब आँख लगी थी, सूरज की रोशनी छन-छन करके कमरे में आ रही थी। वो अंगड़ाई लेते हुए उठा, घड़ी में वक़्त देखा तो दिन के 12 बज चुके थे। वो तेज़ी से खड़ा हुआ, सामने ही बेड पर सवेरा अभी तक सो रही थी, वो झट्टी-सी नज़र इस पे डालते हुए वॉशरूम में चला गया। वो सोकर उठी तो उसका सर घूम रहा था, काफ़ी देर तक वो खाली दिमाग लिए बैठी रही। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और शहरयार तौलिया से मुँह पोंछता बंदा दाखिल हुआ। इसने कड़ी निगाह अपने बेड पे बैठी हुई सवेरा पे डाली, जो भी था, लेकिन ये भी एक तल्ख़ हकीकत थी कि इन्हें कुछ अरसा तक ये बेडरूम शेयर करना था, इसलिए बेहतर था कि अपनी हुदूद तय कर लेते। "सुनो लड़की", वो पुरजोश नज़रों से इसे देखता हुआ बेड के पास आकर रुका और चौंक गया। सवेरा के गुलाबी चेहरे पर उँगली के निशानात थे, चमकती निशानी पर नील का निशान था। दिन की रोशनी में इसकी चोटें साफ़ नज़र आ रही थीं। कल जब इसने इसे दुल्हन बने देखा था, इस वक़्त ऐसे कोई निशान इसके चेहरे पे नहीं थे। "ये तुम्हें क्या हुआ है?" वो हैरत से पूछ रहा था। सवेरा ने गड़बड़ाकर दुपट्टा खींचकर सर पर डाला और एक झटके से उठ खड़ी हो गई। "मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ।" उसने जाती हुई सवेरा को कलाई से पकड़कर रोका। तकलीफ़ की शिद्दत से सवेरा के हलक से सिसकी हुई और ऐसे इसकी आँखों में उमड़ती हुई नमी को देख रहा था। "कुछ नहीं, हाथ छोड़े प्लीज़, मुझे जाना है।" वो भीगी हुई आवाज़ में बोली। इसके अंदाज़ में शहरयार का दिमाग घूम गया। "लगता तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, चाहे गलती से ही सही, पर जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें तमीज़दार बनना पड़ेगा और मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिलना चाहिए, अंडरस्टैंड?" वो कराया। वो कल पुप्पो सवेरे की समझ में आया वो क्या जवाब दे, तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। शहरयार ने सवेरा की कलाई अपनी मज़बूत गिरफ्त से आज़ाद की, उसे घूरता हुआ दरवाज़े की सिम बढ़ा। "अस्सलाम वालेकुम रुखसार आपी, आप तो अस्पताल गई थी ना?" वो दरवाज़े में रुखसार को देखकर हैरान रह गया। "हाँ, मेरे भाई फजर पढ़कर गई थी, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे भाई बहुत बेहतर है, बस अभी वापस आई हूँ। चलो नीचे चलो, शाह बीबी बुला रही है।" और सवेरा की तबीयत अब कैसी है? वो इत्मीनान से बात करती हुई अंदर दाखिल हुई। सवेरा ने इन्हें देखते सलाम किया और वो भी जवाब देते हुए पास आई। उसके माथे को छूकर देखा, फिर आस्तीन पलटकर इसकी कलाई का ज़ख्म चेक किया। शहरयार हैरत से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। जब वो सवेरा का हाथ थामे इसके पास आई, "चलो साथ ही चलते हैं, शाह बीबी ने तुम दोनों के लिए स्पेशल नाश्ता तक करवाया है, तैयार करवाया है। वैसे अब वक़्त तो लंच का है, लेकिन नए दूल्हा-दुल्हन उमूमन इसी टाइम नाश्ता करते हैं।" वो शरारत से छेड़ते हुए बोली। आप 1 मिनट रुकें, सुनिए लड़की, तुम नीचे चलो, हम अभी आ रहे हैं।" वो रुखसार को रोकते हुए सवेरा को आगे जाने का इशारा करते हुए बोला। "क्या बात है शाओ, मुझे क्यों रोका? वो एक दिन की दुल्हन अकेले जाती अच्छी लगेगी क्या? अभी भी हवेली में मेहमान ठहरे हुए हैं, सब क्या सोचेंगे?" रुखसार ने टोका।
या वहशत आपी थोड़ा ब्रेक लगाए, मुझे बताए सवेरा को क्या हुआ है। इसने टोकते हुए पूछा। सवेरा तुम रुको। रुखसार ने जाती हुई सवेरा को रोका और खुद वार्डरोब की जानिब बढ़कर इसके लिए हल्के से काम का फिरोजी सूट निकाला। ऐसे उजाड़ हुलिये में बाहर जाओगी, चलो जल्दी से फ्रेश हो लो, ये लिबास बदलो, फिर साथ नीचे चलेंगे। सवेरा बेदिली से लिबास थाम कर वॉशरूम में चली गई तो रुखसार ने अपना रुख शहरयार की जानिब किया। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? सवेरा को क्या हुआ? इसके चेहरे पे ये निशानात कैसे हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो जिए या मरे तुम्हें क्या? तुम अभी तो इसे छोड़कर दूसरी शादी में ऐलान किए बैठे हो। आप ही में मेरे में अभी भी इंसानियत रखता हूँ। ज़रूरी नहीं कि इंसान की सारी हमदर्दी सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही हो। इसके साथ मेरा कज़न का भी रिश्ता है, मैं इसी रिश्ते के हक़ से पूछ रहा हूँ। वो संजीदगी से बोला। रुखसार इसे संजीदगी से देखते हुए फूफो की सवेरा से बलाजवाब दुश्मनी और कल की मारपीट का बताने लगी। सवेरा लिबास तब्दील करके बाहर आ चुकी थी। फिरोज़ी रंग में इसकी रंगत मज़ीद निखर गई थी। रुखसार ने इसे सिंगार मेज़ के सामने बिठाया और दुपट्टा उतार कर इसके लंबे सियाह बाल सुलझाने लगी। "आप ही मैं जा रहा हूँ, आप ये फ़िज़ूल काम जारी रखें।" शहरयार खौफ़ से इन दोनों को देखते हुए बोला और तेज़ी से बाहर निकल गया। "सवेरा अभी बहुत वक़्त कम है, बाल बाद में बाँध लेना। सुनो चेहरे पर ये बेस लगा लो।" सवेरा इस बात में सैलीन लाती उनके मशवरे अमल करती हुई तैयार हो चुकी थी। रुखसार सवेरा को लेकर कमरे से बाहर निकली थी। अभी वे दोनों सीढ़ियाँ पे थे कि इन्हें ज़ाहिदा ताई पास आती हुई नज़र आई। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। सवेरा ने सलाम किया। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह चश्मे बदूद। उन्होंने प्यार से इसकी पेशानी चूमी। "चलो तुम दोनों शाह बीबी के कमरे में चलो, शाह और तुम्हारे ताया भी इधर ही हैं।" वो इन्हें हिदायत देती हुई किचन में चली गई। सुबह से पहले अस्पताल, फिर रात के ठहरे हुए रिश्तेदारों के नाश्ते पानी के बाद रवानगी ने इन्हें घिन चक्कर बना दिया था। शाह बीबी के कमरे में सलीम साहब और शहरयार दोनों ही मौजूद थे। सवेरा झिझकते हुए सबको सलाम करती शाह बीबी के पास जाकर बैठ गई। "कैसी तबीयत अब तुम्हारी? रात तो तुमने हम सबको डरा दिया था।" शाह बीबी इसके चेहरे को बखूर देखते हुए बोली। इसी वक्त दरवाज़ा खुला। रुखसार और ज़ाहिदा मुलाज़िमा के साथ चाय, जूस और हलवा पूरी उबले अंडे, गाजर का हलवा लेकर अंदर दाखिल हुआ। मैं इस दरमियान में रखकर सेट करने लगी। इसी वक्त शहरयार का फ़ोन बजने लगा। इसने फ़ोन चेक किया तो ऑफ़िस से इसकी सेक्रेटरी की कॉल आ रही थी। वो फ़ोन उठाकर शाह बीबी से माज़रत करता हुआ तेज़ी से फ़ोन को कानों से लगाता हुआ बाहर निकल गया। "रुखसार बेटी तुम नाश्ता सर्व करो, शाह वो भी कुछ देर में आ जाएगा," शाह बीबी ने कहा। सलीम साहब, ज़ाहिदा बेगम, रुखसार, शाह बीबी और सवेरा नाश्ता करते। बर्तनों के खनकने की आवाज़ सुनाई देती जब एक झटके से दरवाज़ा खुला और फरज़ाना अंदर दाखिल हुई। शाह बीबी, वाह इधर मेरा अकरम अस्पताल में पड़ा हो, यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, दावतें उड़ाई जा रही हैं। वो अंदर का माहौल देखा, ज़हरख़ुन लहजे में पुकारी। "आइए फूफो, हम बैठे नाश्ता करें।" रुखसार ने फ़ौरन उठकर अदब से कहा। "बस बीबी, बस इधर सर तुम्हारे सर का साईं अस्पताल में पड़ा, तुम इधर बेफ़िक्री से खुशियाँ मना रही हो, या यूँ कहो कि आज़ादी के ख्वाब देख रही हो?" रुखसार का चेहरा इनकी बात सुनकर फ़क पड़ गया था। ये तो वही जानती थी कितनी मुश्किल से खुद को सँभाल कर वो ये सब कुछ देख रही थी। "फरज़ाना आपा, ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं?" सलीम साहब ने से रुखसार का उतरा हुआ चेहरा बर्दाश्त नहीं हुआ। "सलीम मियाँ, तुम तो बीच में मत बोलो।" वो इन्हें टोक ही रही थी कि इनकी निगाह शाह बीबी से चिमटी हुई सवेरा पे पड़ी। "शाह बीबी, मुझे यकीन नहीं आता कि आप मेरी सगी माँ हैं। इस लड़की की माँ की वजह से मेरी नंद का वट्टा-सट्टा वाला रिश्ता टूटा था। मेरा घर उजड़ते-उजड़ते बचा था। इतनी बदनामी हुई थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और मर गई, छोड़ गई हम सबको। आप इसी नागन की बेटी को सीने से लगाए बैठी हैं।" फरज़ाना चलती हुई पास आई और एक झटके से सवेरा को बाजू से पकड़कर शाह बीबी के पास से उठाकर अपने सामने खड़ा किया। "तेरी माँ भी बेगैरत थी जो घर से भाग कर आई थी, और तू इससे भी बड़ी बेगैरत है, इतनी ज़लालत उठाकर भी ज़िंदा है।" उन्होंने इसे एक ज़ोरदार झटका दिया। "फरज़ाना, बच्ची को छोड़ दो," शाह बीबी उठते हुए बोली। "तेरे सोते मर चुके हैं, तुझे कोई नहीं पूछता। शहरयार भी तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, फिर भी तू समझ नहीं रही। देख सवेरा, इस घर का शहरयार का पीछा छोड़ दे, अपना मनहूस वजूद लेकर चली जाए यहाँ से।" उन्होंने सवेरा को झंझोड़ा। "ये क्या हो रहा है पप्पा? आप सवेरा से किस तरह बात कर रही हैं?" फ़ोन बंद करके अंदर आते शहरयार ने सारा मंज़र तासुफ़ से देखा और तेज़ी से अंदर आकर सवेरा को इन गिरफ्त से आज़ाद करवाया। "वाह बेटा वाह! एक ही रात में इस मनहूस का जादू तुम्हारे सर पर चढ़ गया है। आप सवेरा को कमरे में ले जाएँ।" वो सवेरा के खौफ से फीके पड़ते चेहरे से नज़र चुराते हुए बोला। रुखसार तेज़ी से आगे बढ़ी और सवेरा को लेकर कमरे से निकल गई। "पप्पा, आप बैठे हैं, बैठकर आराम से बात करें," वो इन्हें इशारों से थाम कर बैठते हुए रसान से बोला। "फरज़ाना ने बिलावजह का बैर पाल रखा है इस मासूम से। कल तो इसे मारा पीटा भी, हालाँकि वो हमारे प्यारे छोटे बेटे की निशानी, जिसे वो बड़े इत्मीनान से तुम्हारे हवाले करके मरा था।" शाह बीबी अफ़सरदगी से बोली। "पप्पो, आप बताएँ, आप क्या चाहती हैं?" शहरयार ने पूछा। "इस मनहूस लड़की के वजूद को इस हवेली से निकाल कर बाहर करो, वरना अब मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी मनहूसियत मेरे बहनों सी नंद भर मेरे भाई को खा चुकी है, और अब देखो मेरा अकरम भी अस्पताल में है।" वो बिगड़े हुए अंदाज में गोया हुई
شہریار نے پرجوش نظروں سے فرزانہ پھپھو کے بگڑے ہوئے انداز کو، سلیم صاحب کے پرتفاق چہرے کو، اپنی ماں زاہدہ اور شاہ بیوی کی آنکھوں کی نمی کو بغور دیکھا۔ وہ مضبوط آدمی تھا، مرد تھا، منٹوں میں فیصلہ کرنے والا۔ ٹھیک ہے پھپھو، آپ نے جہاں اتنے دن گزار لیے، بس 2 دن اور گزار لیں، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہوں بندوبست کرتا ہوں بیٹا جی، تمہاری زن مریدی کے ساتھ تو ابھی سے نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے مرد و حسن کا جادو سر چڑھ کر بولے گا ہی نا۔ افسوس تو اس بات کا ہے تم بھی ایک عام مرد نکلے، حسن کے آگے پگھل جانے والے۔ انہوں نے اسے بھڑکایا۔ پھپھو، شہریار کا جب جواب دے گیا، کیا پھپھو کل تک رٹ لگائے بیٹھے تھے کہ شادی نہیں کرنی، گھر بار چھوڑ گئے، اور اب تم خود اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ سے بحث کر رہے ہو؟ میں صرف انسانیت کے ناطے اس کا ساتھ دے رہا ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہوں، اور آپ یہ وقت بتائے گا میں کیا ہوں۔ ٹھیک ہے میاں، اب تم مجھ سے اور اپنی بہن رخسار جو میری بہو ہے اس وقت بات کرنا ہے جب اس بلا سے پیچھا چڑھا لو۔ اگر رخسار نے تم سے بات کی تو میں اسے طلاق دلوا دوں گی، ویسے بھی اتنے سال ہو گئے، اسی گود بھی خالی ہے۔ وہ تڑپ کا پتا پھینک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہریار بیٹا تم فکر مت کرو، تمہاری پھپھو ابھی غصے میں ہے۔ شاہ بی بی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہ بی بی، کیا ہم سویرا کو ادھر ہی کسی ہاسٹل میں داخل نہیں کروا سکتے؟ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے اور رخسار آپی کا گھر بھی خراب نہیں ہوگا؟ شہریار نے پوچھا۔ نہیں شہریار، اکیلی عورت اس دنیا میں کوئی وقت نہیں رکھتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو یہ لوگ اسے پڑھنے دیں گے؟ ذرا سوچا اگر تم بھی اس یتیم کو چھوڑ دو گے تو اس کا کیا ہوگا؟ شاہ بی بی نے اسے ٹوکا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ خاموش رہا، پھر شاہ بی بی کی طرف مڑا۔ اس کی وجہ چہرے پہ چھائی سنجیدگی بتائی تھی کہ وہ فیصلہ لے چکا تھا۔ بس آئی شاہ بی بی، آپ مجھے سویرا کا پاسپورٹ اور ویزا دیں، میں پرسوں شام اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ وہ سارے مسئلے نپٹاتا ہوا اپنے اور سویرا کے ٹکٹ سیٹ بک کروا کر اسپتال کا ایک چکر لگانے کے بعد رات گئے تھکا اور حویلی میں داخل ہوا، سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ارادہ آرام کرنے کا تھا۔ اندر داخل ہوتا سامنے ہی سویرا بیڈ پہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو یہاں سے اور صوفے پہ مرو، اور خیال رکھنا آئندہ مجھے سے میرے بیڈ سے، حتیٰ کہ میری پرچھائی سے بھی دور رہنا۔ وہ اسے تنبیہ کرتا ہوا لائٹ آف کر کے بستر پہ ڈھیر ہو گیا۔ وہ خاموشی سے آنسو ضبط کرتی ہوئی صوفے پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں کو سدور تھی۔ دوپہر سے اس نے رخسار آپی کو بھی نہیں دیکھا تھا، اوپر سے زاہدہ تائی نے اسے کمرے سے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ پتہ نہیں اب وہ زندگی کیا رنگ بدلنے والی تھی۔